So लास्ट क्लास में हम लोग सन स्पेसेस डिस्कस कर रहे थे, राइट? Yes, ma'am. सो उसमें what are sun spaces? Ma'am, sun spaces are basically a room which is created on the outer surfaces, the outside the main living area, Yeah. and it is covered with glass so that Hmm. and it is created seeing the sun matlab as in towards the south, so that maximum heat could be trapped and it could provide heat in the main residence. राइट. एंड सन स्पेस का मेन फीचर क्या होता है? आप एक नॉर्मल रूम से एक सन स्पेस को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? Ma'am, it is made up of glass. राइट. उसका मैक्सिमम वॉल एंड रूफ एरिया इज कवर्ड विद ग्लेजिंग. सो लेट्स सी. So this is what we were discussing last time कि ग्रीन हाउसेस या ग्रीन हाउस नहीं कहते हैं सन स्पेसेस को, ऑल्दो इट्स बेसिकली द सेम थिंग, बिकॉज सन स्पेसेस in the simplest way sun spaces are for humans and greenhouses are for plants. So उनके advantages ये होते
Excuse me, ma'am. Yes, Chetan. Ma'am, are you explaining? I just realized that I was muted. Yes, ma'am. Okay, so um, did I talk about temperature swings? Ma'am, you haven't started the topic. Oh, Uh, sun spaces को ग्रीन हाउस की तरह समझ सकते हैं, बट सन स्पेसेस एंड ग्रीन हाउस में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि green houses are for plants and sun spaces are for humans. And sun spaces से क्या होता है कि जो भी adjacent मीनिंग उससे adjoining उसके बाजू में जो भी स्पेस होती है, it experiences less temperature swings during day and night, क्योंकि this part the sun space moderates the climate difference. It during the daytime, जैसे अगर ये adjacent space है, so what will happen is during the daytime ये heat trap करेगा, and in ventilation vents के through आपकी heat circulate होगी जैसे कि ट्रॉम्बे walls में होती है. Then during the night time आपकी heat जो stored होगी within this thermal mass वो radiate होगी, so उससे ultimately आपका जो day and night का temperature difference होता है normally वो कम हो जाएगा. And this space is flexible क्योंकि आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हो. You can use it as an extension of your living room. It provides additional space. Then it works well in late winter, meaning जो late winters and spring होती हैं in colder climates, they are a little different from that of our climate. हमारे क्लाइमेट में होली के बाद स्प्रिंग स्टार्ट होती है, सो उस टाइम एज यू नो काफी रिलीफ मिल जाता है ठंड से. टेम्परेचर डे टाइम आफ्टरनून टेम्परेचर्स काफी हाई जाने लगते हैं, बट इन कोल्डर क्लाइमेट्स late winter and even spring is like early February, mid February for us. So उसमें we want some amount of direct heat gain so that जो early morning and early evening and night time है वो थोड़ा warm रहे. But during the afternoon we don't want extreme sun exposure क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. Because we already have so many measures in place, thermal mass and sun space, उससे direct heat gain जैसे हम लोगों के क्लाइमेट में डायरेक्ट हीट गेन से ही गर्मी होती है, बट इमेजिन बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड अ ग्लास स्पेस, तो वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा. तो उसमें व्हाट वी कैन डू इज जो लिविंग स्पेस है, फॉर एग्जांपल जो लिविंग स्पेस है उसमें छज्जे इतने प्रोवाइड करते हैं कि आफ्टरनून मीनिंग 12 बजे से 2 बजे तक वाली धूप ब्लॉक हो जाए एंड अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग वाली धूप आए फिर भी. Then there are some precautions that you must take, like जो expense आता है of creating a sun space in any house, it's not cheap, it's not inexpensive. You need moderate to high expenses to create this. And again, thermal performance जो होती है, मतलब how much you can control thermal comfort through sun space depends on आप उसे कैसे यूज करते हो. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कितना सन एक्सपोजर है. फॉर एग्जाम्पल जो इतने एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी उतना ही होता है, एंड जब स्नोफॉल होता है, स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, तो सन नहीं आता है, मतलब इट्स ऑलवेज क्लाउडी, इट्स ओवर कास्ट स्काई, सो आपको सन ही नहीं आएगा तो आप सन स्पेस को यूज नहीं कर पाओगे टू इट्स फुलेस्ट. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. Then there are some
rules to creating and using sun space for to make the best out of it. So first is effect of orientation. क्योंकि हमारा सन स्पेस की परफॉर्मेंस डिपेंड्स ग्रेटली ऑन कितनी धूप आ रही है. So what we need to do is we need to मेक श्योर कि हमारा जैसे हम लोगों ने थर्मल ट्रॉम्बे वॉल में एंड हर टॉपिक में डिस्कस किया है कि साउथ डायरेक्ट एग्जैक्ट साउथ ट्रू टू साउथ डायरेक्शन में अगर हमारा ओरिएंटेशन होगा या मीनिंग हमारा जो सन स्पेस है वो साउथ फेसिंग होगा तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्टिमम ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जस्ट द एग्जैक्टली राइट अमाउंट, परफेक्ट जो होता है ऑप्टिमम वो होता है क्वांटिटेटिव सेंस में अगर हम परफेक्शन की बात करें तो दैट्स व्हाट ऑप्टिमम मींस. सो द बेस्ट ऑप्शन इज ड्यू साउथ, साउथ फेसिंग. बट आप हर बार it's not necessary कि you can find a true south exposure to create your sun space. So what you can do is आप थोड़ा deviate कर सकते हो towards south southeast or south southwest, but it shouldn't be more than 30 degrees, even, yeah, 30 degrees towards east या 30 degrees towards south होगा तब तक तो it's still fine. You'll still get enough sun exposure to make the take the maximum benefit of a sun space. पर उससे ज़्यादा deviate होगा तो it'll get too less sun exposure and it'll just be a pointless exercise. Then again अगर ड्यू साउथ की बात करें, साउथ फेसिंग सन स्पेस की बात करें तो विंटर्स में तो वी गेट परफेक्ट थर्मल कंट्रोल, बट समर टाइम में ओवर हीटिंग भी हो जाती है कभी कभी. तो उसके लिए यू कैन क्रिएट सम काउंटर मेजर्स या इंसुलेशन क्रिएट कर सकते हो टू बी एबल टू कवर इट और मे बी ब्लॉक द हीट. Then second point is use of mask, meaning आप उस मास्क मीनिंग जो आपका बिल्डिंग मास्क है, बिल्ट मास्क है. बिल्ट मास्क क्या होता है? जो आपका लिवेबल स्पेस होता है प्लस जो भी एरिया आपके बिल्डिंग के प्लिंथ से कवर हो रहा है, दैट्स योर बिल्ट मास्क. एंड बिल्ट मास्क का मैक्सिमम यूज हो जाता है बिकॉज यूर इंक्रीजिंग द लिवेबल स्पेस इन योर हाउस. मीनिंग विंटर्स में अगर आपका सन स्पेस नहीं होगा, इट इज जस्ट एन ओपन स्पेस, क्योंकि ओपन स्पेस में ही बनाया जाता है, तो आप विंटर्स के शाम में या लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग यू वुड नॉट, डेफिनेटली वुडंट वांट टू गो आउट उस जगह पे क्योंकि बहुत ठंडा होगा. एंड ऑब्वियसली ठंड में इट्स नॉट जस्ट धूप नहीं है, इट्स ऑल्सो कि हवा चल रही होती है ठंडी. तो इट मेक्स दैट होल आउटसाइड एरिया एक्सटीरियर आपका अनलिवेबल. बट अगर आपने सन स्पेस क्रिएट कर दिया है अपने बिल्ट मास में, सो व्हाट इट डज इज कि वो हवा भी ब्लॉक ऑफ कर देता है, इट ट्रैप्स हीट, सो इट एड्स लिवेबल या यूजेबल स्पेस इन योर हाउस. देन इट रिड्यूसेस ओवर हीटिंग क्योंकि यू गेट अ बफर, राइट. आप डायरेक्ट हीट गेन क्या होता है कि आपने अपने घर के ही दीवार पे इतनी विंडोज एंड ग्लेजिंग प्रोवाइड कर दी कि डायरेक्टली आपके इंटीरियर स्पेस में इनफ धूप आ रही है कि आपका घर गर्म हो रहा है या एटलीस्ट वो स्पेस गर्म हो रहा है. बट सन स्पेस क्या होता है? इट क्रिएट्स अ वेरी वार्म बफर बिटवीन द आउटसाइड एंड योर इनसाइड स्पेसेस. सो इट रिड्यूसेस ओवरहीटिंग. मतलब आपका सन स्पेस ओवरहीट हो सकता है बट इट विल ओनली डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ दैट हीट इनटू योर इंटीरियर स्पेस. तो ओवरहीटिंग नहीं होती है. देन जो आपकी वॉल थिकनेस है दैट शुड बी 8 to 12 डिग्रीज, आई एम सॉरी 8 to 12 इंचेस. क्यों? जैसे हम लोगों ने इसके पहले ट्रॉम्बे वॉल्स में बात की, तो हमारी जो वॉल्स की थिकनेस होनी चाहिए, इन वॉल्स की थिकनेस
ये जो वॉल्स हैं, दिस शुड नॉट बी मोर देन 6 to 4 inches। 4 इंच से 6 इंचेस के बीच में होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम यूज हो पाता है ऑफ ट्रैपिंग हीट इनटू अ स्पेस, राइट। क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो आपका बाहर वाला, जैसे डायरेक्ट हीट गेन में हम लोगों ने बात की थी, सी इसमें ये वॉल्स एंड देन ये वॉल्स अगर बहुत ज्यादा थिक होंगी तो उसका सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट या इंटीरियर एक्सटीरियर जहाँ सन एक्सपोजर हो रहा है, जहाँ धूप लग रही है, वो गर्म होगा एंड कंडक्शन होते होते इंटीरियर स्पेस तक बहुत ही मिनिमम हीट आ पाएगी एंड इट विल नॉट रेडिएट इनफ हीट सो दैट आपका स्पेस गर्म हो पाए। तो वो अगर 6 इंच से ज्यादा डायरेक्ट हीट गेन के लिए आपने वॉल्स क्रिएट कर दी तो दैट विल बी पॉइंटलेस। यू विल एड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पर उससे फायदा कुछ नहीं होगा। बट सन स्पेस में क्या होता है कि क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्ट धूप से आपकी वॉल्स नहीं गर्म हो रही हैं, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सन स्पेस में वो हीट ट्रैप होती है एंड देन इट हीट्स अप दैट कन्वेक्शन के थ्रू दैट वॉल। सो अगर वो 8 to 12 इंचेस थिक होगी तो आपका इवेंचुअली रात तक, क्योंकि दिन में तो यू डोंट नीड दैट मच हीट, ऑलरेडी हीट डायरेक्ट सनलाइट से भी हीट गेन होगा एंड सन स्पेस से तो होगा ही होगा। बट देन नाइट टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल डायरेक्ट सनलाइट से ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे बिकॉज ट्रैप हो रही है हीट, तो a lot of heat will easily conduct into your interior space, radiate into your interior space शाम के टाइम आफ्टर 6 to 8 hours। अदरवाइज बहुत पतली होगी तो वो सुबह से गर्म होना शुरू होगा एंड विद इन 3 to 4 hours वो हीट अंदर रेडिएट हो जाएगी एंड देन शाम को वापस से ठंडा होने लगेगा स्पेस। सो यू नीड टू स्टोर मोर हीट एंड यू नीड मोर डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एंड इंटीरियर स्पेस सो दैट वो शाम तक ही आपकी नाइट टाइम में हीट रेडिएट हो अंदर की तरफ। Was that clear or should I explain it again? Yes, I'm clear. Okay. Shivam? Yes, ma'am. Never mind. Let's move on to the next point. Area of mass. Direct heat gain rules apply. Three mass to one glazing. मीनिंग एरिया ऑफ मास, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट हीट गेन में पढ़ा था कि कितना रेशियो होना चाहिए हमारा वॉल का एंड ग्लेजिंग का। मतलब हमारा वॉल स्पेस है उसमें मेसनरी कितने रेशियो में होनी चाहिए एंड ग्लेजिंग कितने रेशियो में होनी चाहिए टू ऑप्टिमाइज डायरेक्ट हीट गेन। एंड वही वही रूल इस पे भी अप्लाई होता है। 3:1 का रेशियो, अगर 3 टाइम्स आपका टोटल वॉल एरिया x है तो उसका 3 पार्ट्स विल बी योर बिल्ट मास, आपकी मेसनरी वॉल, एंड 1 पार्ट विल बी ग्लेजिंग। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट ग्लेज एंड वॉल्स। मीनिंग फ्रंट वॉल्स तो वो हुई जहां हमारा सन एक्सपोजर हो रहा है, देन एंड वॉल वो हुई जो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे धूप नहीं आती है। तो वहां पे हमें ग्लेजिंग नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि उससे सिर्फ क्या होगा, बिकॉज हीट गेन तो होगी नहीं क्योंकि वहां तो धूप आती नहीं है, तो वहां से सिर्फ हीट लॉस होगा। एंड जो भी हम लोगों ने हीट फ्रॉम द वॉल थर्मल मास डायरेक्ट हीट गेन से फाइन डाइवर्ट की है इनटू आवर इंटीरियर स्पेस, वो वहां से डिसिपेट हो जाएगी। सो इट विल add problems to your building. सो आपकी एंड वॉल्स जो है वो उसमें ग्लेजिंग नहीं करनी चाहिए फॉर बोथ समर एंड विंटर परफॉर्मेंस। देन समर वेंटिंग, मीनिंग आपको समर्स में आपका स्पेस वेंटिलेट करना पड़ेगा
स्पेशली अगर आपने शेडिंग नहीं प्रोवाइड की है, जैसे वी टॉक्ड अबाउट दिस, ये ओवरहैंग, देन यहाँ पे ओवरहैंग अगर हमने प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वेंटिलेशन अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट समर्स में भी जो इसके थ्रू हीट गेन होगा या डायरेक्ट हीट गेन होगा वो वेंटिलेट हो पाए, वो एस्केप कर पाए अगर ओवर हीटिंग हो गई तो। बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट समर्स में प्रॉब्लम होगी। अगर शेडेड नहीं है तो, अगर शेडेड है तो इट्स फाइन। देन वॉल कलर, इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो डायरेक्ट हीट गेन में थे। मीनिंग हम लोगों ने बात की थी ना कि जो कलर होता है डायरेक्ट हीट गेन के लिए, वॉल्स का हमें लाइट कलर रखना चाहिए एंड फ्लोरिंग का डार्क रखना चाहिए। क्योंकि इफ यू नोटिस लाइक इन दिस, धूप जो आ रही है वो फ्लोर मैक्सिमम हमारे फ्लोर पे हिट करती है डायरेक्ट सनलाइट। सो अगर हमारी फ्लोर्स डार्क कलर की होंगी तो दे विल ट्रैप द हीट, क्योंकि डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट एंड लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट। सो हमें फ्लोरिंग अपनी डार्क कलर की रखनी है एंड जो लाइट वॉल्स हैं एंड सीलिंग्स हैं, सीलिंग एंड वॉल्स को हमें लाइट कलर का रखना है, सो दैट डायरेक्ट हीट गेन तो हो ही, बट अगर हम सब कुछ डार्क कर देंगे टू मैक्सिमाइज हीट गेन तो एक तो स्पेस एक्सेसिवली हीट अप हो जाएगी एंड ऑल्सो बहुत डार्क हो जाएगा स्पेस। सो वॉल्स एंड सीलिंग लाइट होने से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, सो आपका स्पेस विल फील नाइस एंड एयरी, एंड फ्लोर्स डार्क होंगी तो योर स्पेस विल स्टिल गेन सम अमाउंट ऑफ हीट। सी डायरेक्ट हीट गेन में था we should have floors should be dark to absorb more heat and ceiling should be lighter to reflect light, and same rules apply to sun space. But इसमें कुछ exceptions हैं, we should follow the same rules but there are a few exceptions, like use dark colors in general as light colors tend to reflect light and heat out of the space. So you don't have to keep the walls extremely white and bright, पर हाँ आप मे बी डार्कर, थोड़ा शेड ऑफ ग्रे यूज कर सकते हो, दे कैन बी अ लिटिल डार्कर, दे डोंट हैव टू बी एब्सोल्युटली डार्क या ब्लैक, बट हाँ थोड़ा डार्क, कंपैरेटिवली डार्क कलर यूज कर सकते हो। बिकॉज उससे, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट गई तो हो नहीं रही, धूप हमें डायरेक्टली वॉल्स को हिट नहीं कर रही है, तो हमें थोड़ा जो बैक वॉल्स हैं उसको थोड़ा एम्प अप करना पड़ेगा सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट। सो हम लोग थोड़े डार्क कलर्स यूज कर सकते हैं। देन अनदर एक्सेप्शन इज कि अगर आप उस सन स्पेस को ग्रीन हाउस की तरह यूज कर रहे हो, मीनिंग आप वहां पे प्लांट्स रख रहे हो, तो क्या करना चाहिए कि जो कॉर्नर सर्फेसेस हैं उसको थोड़ा थोड़ा लाइट कलर का रखना चाहिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव प्लांट परफॉर्मेंस इन लाइफ। क्यों? प्लांट्स को क्या चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल? हम्म मैम प्लांट्स को सनलाइट। क्या चाहिए होता है? राइट, सनलाइट चाहिए होती है। सो हम अगर जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स का मतलब वहां पे मे बी, सी ग्लास के कॉर्नर्स की तो बात ही नहीं कर रहे बिकॉज वी आर नॉट पेंटिंग ग्लास, पर अगर वॉल का कॉर्नर है, सो मे बी यू ओनली हैव ग्लेजिंग ऑन द वन फेस ऑफ द वॉल, बाकी के 3 साइड्स वॉल्स हैं, सो वो जो कॉर्नर होगा वहां पे मे बी उतनी सनलाइट ना आ पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे थोड़ा कॉर्नर को लाइट रखना पड़ेगा, सो मे बी light can reflect off of it and the plants can survive.
ओके, सो सेवेंथ रूल इज सन स्पेस की विड्थ। क्योंकि अगर हम बहुत पतला कर देंगे तो उतनी हीट ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, बिकॉज वॉल्यूम कम होगी। देन बहुत ज्यादा डेप्थ दे देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो बिल्डिंग की वॉल है, हमारे रूम की वॉल्स है, वो इतना ज्यादा दूर हो जाएंगी कि वो उतनी हीट ट्रैप होके स्टोर ही नहीं हो पाएगी, वो डिसिपेट हो जाएगी उसके पहले। सो सन स्पेस की विड्थ हम लोगों को 15 to 20 फीट के बीच में रखनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 20 फीट एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 15 फीट। 15 feet is 1 feet 3 inches, so that's quite less, barely, सिर्फ खड़े होने की जगह होगी। एंड 20 feet, sorry, 15 feet is, sorry, 15 feet is almost the optimum depth of a living room, and 20 feet is the optimum length of the living room. So और एक एवरेज साइज लिविंग रूम जितनी डेप्थ होनी चाहिए उससे कम होगी तो इट वोंट, या उससे ज्यादा होगी तो इट वोंट वर्क एज दैट। देन कलर्स, अगर आप वॉल स्पेस दे रहे हो या इवन ग्लास का जो टिंटेड, अगर आप टिंटेड ग्लास लगा रहे हो तो उसका कलर आप डार्क रखोगे तो इट विल एब्जॉर्ब मोर। एंड इफ यू वांट टू यूज इट एज अ सन स्पेस एंड नॉट एज अ ग्रीन हाउस, मतलब आप अपने लिए यूज करना चाहते हो, तो यू शुड कीप लेस प्लांट्स एंड लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स इन इट, क्योंकि लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे एंड आपकी वॉल पे उतनी हीट नहीं पहुंच पाएगी जितनी पहुंचनी थी। देन रूफ्स, सो किसी सन स्पेस की रूफ ऐसी होनी चाहिए कि आप समर्स में उसे शेड कर पाओ या कवर कर पाओ, सो दैट ओवर हीटिंग ना हो। एंड उसमें आप कर्टन्स एंड ऑनिंग्स या इंटरनल शेड्स प्रोवाइड कर सकते हो टू कंट्रोल थर्मल हीट गेन थ्रू डायरेक्ट सनलाइट इन समर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो रिमोट कंट्रोल्ड शेड्स होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैन्युअली कंट्रोल्ड शेड्स भी हो सकते हैं, बट रूफ के लिए यू माइट नीड समथिंग दैट कैन इजीली ऑपरेट। देन जो कॉमन वॉल होती है सन स्पेस की और इंटरनल स्पेस की, वो कॉमन वॉल को क्लोज ऑफ करना चाहिए, मतलब ऐसी बननी चाहिए कि व्हेन यू नीड टू यू कैन क्लोज इट फ्रॉम द मेन लिविंग स्पेस सो दैट ओवरहीटिंग ना हो। एंड जो कॉमन वॉल होती है वो प्रेफरेबली मेसनरी की होनी चाहिए। वाई, क्यों इतना फोकस किया जा रहा है मेसनरी पे? इट्स बिकॉज सी ट्रॉम्बे वॉल्स या इस टाइप का थर्मल मास जो है वो वुडन कंस्ट्रक्शन में नहीं बन पाता है। यू नीड कॉन्क्रीट या स्टोन या ब्रिक मेसनरी टू बी एबल टू डू दिस, क्योंकि जो वुडन कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टड्स से होता है। उसमें पोस्ट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्रिएट किए जाते हैं एंड देन उसको फ्रंट एंड बैक में कवर किया जाता है विद वुड बोर्ड्स, सो दे आर हॉलो। एंड हॉलो स्पेसेस का यू ऑलरेडी नो क्या होता है, दे आर टेरेबल, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो अगर आपको थर्मल मास क्रिएट करना है तो यू विल नीड मेसनरी, एंड कोल्डर क्लाइमेट्स में एज यू नो इट्स इजियर टू फाइंड सॉफ्टवुड ट्रीज, तो वहाँ पे वुडन कंस्ट्रक्शन होता है। सो दिस कॉमन वॉल नीड्स टू बी मेसनरी की वॉल, एंड ऑल्सो ऐसा उसमें प्रोविजन होना चाहिए, मे बी वेंट्स हो जो ओपन एंड क्लोज हो सके, सो दैट समर्स में यू कैन क्लोज इट। जैसे ट्रॉम्बे वॉल में हम लोग देखे थे वेंट्स ऊपर एंड नीचे, वैसे। एंड देन these vents are required, so because हम लोग हीट ट्रांसफर को मतलब एडिशनल हीट ट्रांसफर कर पाए थ्रू दैट वेंट्स, जो हम लोगों ने बात की थी कि हीट अप होती है एयर एंड देन इट बिकम्स लाइटर, इट राइजेस अप, एंड वो ऊपर वाले वेंट से रूम में जाती है एंड देन इट द कोल्डर एयर विच इज heavier and it settles down, it comes out into the sun space
एंड हीट्स अप एंड वो साइकिल कंटिन्यू होता है। उसके लिए वेंट्स प्रोवाइड करना जरूरी है। देन लास्ट पॉइंट दैट जो डोरवेज होते हैं उसका एटलीस्ट 15% जो एरिया है टोटल दरवाजे का या टोटल सारे दरवाजे जितने हैं उनका 15% एरिया जो है वो ग्लेजिंग होना चाहिए, मतलब वो ग्लास का होना चाहिए। एंड जो टोटल विंडो ओपनिंग्स हैं उसमें से 20% ग्लेजिंग एरिया होना चाहिए। एंड जो ऊपर और नीचे वाले वेंट्स हैं उन पूरे दोनों को मिला के, मतलब पेयर, ऊपर और नीचे का एक पेयर होता है, सो उनमें 10% ग्लेजिंग एरिया होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, मैम ठीक। हाँ शिवम। मैम अगर कलरिंग की जगह वुडन का यूज करें तो मैम ज्यादा बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सनपाथ। क्या क्या बेटा? मतलब मतलब वॉल पे अगर कलर की जगह वुडन का यूज करें मैम, जो आपने हाँ पढ़ाया था पीवीसी और डब्ल्यूपीसी, इसका यूज करें तो ये हाँ। ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं एक्चुअली सी, आपको याद है हम लोग को जब डब्ल्यूपीसी एंड ये सब पैनल्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग डब्ल्यूपीसी पैनल्स वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें इंसुलेशन देना हो, मतलब हमें बाहर की हीट को बाहर ही रखना हो, अंदर का स्पेस गर्म ना हो, है ना। तो अगर हम ठंडे क्लाइमेट में जहाँ पे हमें अंदर की स्पेस को गर्म करना है वहां पे डब्ल्यूपीसी या ऐसी पैनलिंग दे देंगे जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, तो हमारी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी बाहर वाली जो भी हीट गेन हमने किया, गर्मी ऐड की या धूप की, वो सब उसकी गर्मी अंदर तक आएगी ही नहीं, तो अंदर के यस मैम। स्पेसेस तो फिर भी ठंडे रहेंगे। यस मैम। सी, यस मैम। हमारे क्लाइमेट में जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम डब्ल्यूपीसी पैनल्स, वुडन पैनल्स, ऐसे सब पैनल्स यूज करेंगे जिससे बाहर की गर्मी अंदर तक ना आए। पर जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि गर्मी अंदर आए, वहां पे हम स्टोन के या ब्रिक की, कंक्रीट की दीवार बनाएंगे, सो दैट उसमें हीट एब्जॉर्ब हो और हीट स्टोर हो। एंड कलर से क्या होता है, जो भी डार्क कलर्स होते हैं, चाहे वो लकड़ी हो चाहे डब्ल्यूपीसी हो, वो अगर डार्क कलर, इवन आपके कपड़े, अगर आप डार्क कलर के पहन के, आप ब्लैक शर्ट पहन के धूप में खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो बहुत यस ज्यादा मैम। जल्दी गर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आप व्हाइट कपड़े पहने होगे तो आप धूप में खड़े होगे तो भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उतना गर्मी नहीं होती है। सो यस मैम। जब हम गर्मी अंदर करना चाहते हैं तो हम ऐसे सारी चीजें यूज करेंगे, डार्क कलर्स एंड ऐसी सारी चीजें जिससे हम अंदर के स्पेस में गर्मी ला पाए। तो पैनल से क्या होता है, इंसुलेशन मिलता है, तो हीट आ नहीं पाती, इसलिए पैनल्स नहीं यूज करेंगे। अब आप डार्क ओके कलर मैम। के वुड पैनल भले ही यूज कर सकते हो, क्योंकि वुडन पैनल अंदर से हॉलो नहीं होते हैं, खोखले नहीं होते, तो वो इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करते, वो भले ही यूज कर सकते हो, पर वो भी डार्क कलर के होने चाहिए। यस मैम। पर ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज करेंगे जो अंदर से हॉलो हो, जिसमें कैविटी हो, क्योंकि कैविटी से इंसुलेशन मिलता है। यस मैम। ओके। सो ये एक एग्जांपल है सन स्पेस का। इसमें इन्होंने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वर्टिकल वॉल्स, इन्होंने क्या किया है, इंक्लाइंड स्पेस क्रिएट किया है। इंक्लाइंड, किसी ने पूछा था मुझसे, सी, ये जो पार्ट है रूफ का, जो इंक्लिनेशन है, स्लोप प्रोवाइड किया है, तो इससे क्या होता है कि हमारा सूरज कितना भी ऊपर चला जाए, इवन आफ्टरनून्स में हमारी धूप आराम से अंदर आती रहती है, बिकॉज हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस को कवर कर लिया है। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस तक धूप आ पाती है हमारे स्पेस में। तो दिस इज एक एग्जांपल फॉर सन स्पेस। इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें लोग भी हैं, इसमें सीटिंग एरिया भी है।
देन जैसे कि ये है, इसमें क्या है, दिस इज अ सोलर ग्रीन हाउस या सन स्पेस विद, सी क्योंकि ये प्लांट्स के लिए भी वर्क कर रहा है, एंड सी यहाँ पे तो इन्होंने ग्राउंड में ही लगा दिए हैं, सी यहाँ पे ग्राउंड पे ही इन्होंने लगा दिए हैं प्लांट्स। सो दिस इज अ कंबाइंड स्पेस, ग्रीन हाउस की तरह भी वर्क कर रहा है एंड सन स्पेस की तरह भी वर्क कर रहा है। सो ऐसी स्पेसेस कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, एक रूल था कि हमें प्लांट्स और लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को लिमिट करना है। सो हाउ विल दिस वर्क, इसमें तो प्लांट्स भी हैं, सी लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, एंड देन ये भी है, बैरल्स भी लाइट वेट होते हैं। सो लेट्स सी, ये एक डायग्राम है ऑफ दिस सेम स्पेस, राइट। इन्होंने जैसे ये ग्लास है वैसे ही ये पार्ट, दिस इज ग्लास, इतना पार्ट ग्लास है, ये प्लांट्स हैं, राइट, यहाँ प्लांट्स हैं, एंड ये बैरल है। क्या बोल रहे हैं, सोलर ग्रीन हाउस विथ थर्मल मास एंड थर्मल मास इन द फ्लोर। सी ये थर्मल मास है, इन्होंने रॉक्स ऐड किए हैं यहाँ पे, जो भी जो कि प्यूमिस है। सी प्यूमिस क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ igneous rock and it's porous, porous है तो it will trap heat। सो इन्होंने रॉक का एक बेड क्रिएट किया है जो थर्मल मास प्रोवाइड करता है, एंड देन वाटर बैरल्स, मीनिंग ये वाटर बैरल है, इसमें पानी भरा हुआ है ड्रम में। सो इससे क्या होता है, पानी, इफ यू नोटिस, तो अगर जैसे हमारी पानी की टंकी धूप में रखी होती है तो वो पानी भी गर्म हो जाता है, एंड अगर आप उस टंकी के पास जाओगे शाम को भी, इवन जब सनसेट हो जाता है, आप 6 साढ़े 6 बजे भी जाओगे तो वो उसमें से हीट रेडिएट हो रही होती है, गर्मी निकल रही होती है उसमें से। सो वो भी हमारा थर्मल मास हुआ ना, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब की हीट एंड देन स्टोर की, तभी तो रेडिएट हो रही है। सो आर वाटर टैंक्स आर ऑल्सो थर्मल मास। सो हमने थर्मल मास एक तो फ्लोरिंग में क्रिएट किया, एंड देन बैरल्स, पानी से भरे हुए बैरल से क्रिएट किया। दिस इज अ वाटर फिल्ड ड्रम, and then this is polyethylene, meaning this is glass, acrylic glass, and इसमें थोड़ा स्लोप प्रोवाइड किया है ग्लास में, सो दैट अगर पानी या बर्फ गिरे तो वो आराम से स्लाइड होके नीचे चली जाए, इट डजंट स्टे ऑन दिस, अदरवाइज ये टूट सकता है। ऑफ कोर्स इट इज थिक इनफ सो दैट इट डजंट ब्रेक, एंड ऑफ कोर्स इसमें ये ऐसे पैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम, सो दैट इट्स नॉट अ लॉन्ग ब्लॉक ऑफ ग्लास, बट हाँ, हम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों नहीं। देन ये है, लेट्स सी, दिस इज पार्शियल शेड फॉर समर, जो हम लोगों ने बात की थी कि समर्स के लिए हम लोग थोड़े ओवरहैंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट डायरेक्टली हीट ना आए। सो दिस इज पार्शियल शेड फॉर समर। सो अब ये धूप आ रही है, सी ये धूप आ रही है, एंड यहाँ, सो इससे क्या होगा कि क्योंकि हमारी, एज यू कैन सी, इसमें धूप से हमारी फ्लोर, इस फ्लोर के नीचे स्टोन्स हैं, राइट। सो ये फ्लोर हीटअप हो रही है क्योंकि धूप डायरेक्टली इस पे पड़ रही है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ऑल ग्लास फ्रंट में एंड ऊपर। सो दिस विल एब्जॉर्ब एंड स्टोर हीट। देन अगेन वाटर बैरल्स, ये जो रखे हैं ये वाटर बैरल्स,
हीट गेन करेंगे एंड स्टोर करेंगे। सो इससे हम इस पूरे स्पेस का ऑब्वियसली थर्मल मास बढ़ा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड उससे क्या होगा, एंड नोटिस ये जो ड्रम है एंड जो रॉक की थिकनेस है, रॉक बेड की थिकनेस यहाँ से कम हो से ज्यादा हो रही है, देन इट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स द वॉल एंड इंटीरियर स्पेस। सो इससे क्या हो रहा है कि जो भी हीट रेडिएट होगी शाम के टाइम इस ड्रम से एंड इस फ्लोर से, वो यहाँ से इस स्पेस के अंदर जाएगी जो हम लोगों ने वॉल्स के वेंट्स क्रिएट किए हैं ऊपर एंड नीचे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजाइन एक्सपेरिमेंट कि इन्होंने ये देखना चाहा है कि एक नॉर्मल सन स्पेस में जितनी हीट हम लोग गेन कर सकते हैं उसमें और कैसे हीट गेन हम बढ़ा सकते हैं। दिस इज अनदर बैरल, दिस इज अनदर बैरल, एंड यहाँ पूरा फ्लोर में थर्मल मास है। सो दिस विल मैक्सिमाइज हीट गेन। देन पैसिव हीटिंग, इसमें ये दिखाया है कि अगर हम ग्रीन हाउस के साथ साथ क्लियर स्टोरी विंडो भी दें, जैसे ये है, दिस इज अ क्लियर स्टोरी विंडो राइट, एक छत ये है एक छत ये है, दोनों के बीच में विंडो है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड फ्लोर का विंडो बट इट इज ऑल्सो अ क्लियर स्टोरी विंडो। सो व्हाट विल हैपन इज कि हम एक्चुअली क्लियर स्टोरी तब होती है अगर यहाँ पे फ्लोर नहीं होता। तो इफ दिस वाज वन बिग स्पेस तो ये क्लियर स्टोरी कहते हैं। एनीवेज, ग्रीन हाउस में यहाँ पे ग्लास है। सो यहाँ तो हीट गेन हो ही रहा है, हम लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं इस बारे में कि कैसे हीट गेन होता है, यहाँ पे हीट गेन हो रहा है। देन बिकॉज ये ग्लास से भी हीट रेडिएट होती है राइट, जितना हीट अप होगा उतनी हीट रेडिएट। अब ग्लास तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते नहीं कि हम अंदर ही हीट रेडिएट करेंगे बाहर नहीं करेंगे, इट रेडिएट्स हीट एवरीवेयर। सो वो हीट इस विंडो से भी सेकंड फ्लोर को भी हीट अप करेगा। सो हम ग्रीन हाउसेस को सिर्फ, ये जरूरी नहीं कि हम इसी एडजॉइनिंग स्पेस को ही हीट अप करें, हम ऊपर की फ्लोर्स को भी हीट अप कर सकते हैं अगर इफ वी प्लान आवर विंडोज स्मार्टली। Okay, so thermal storage roof is our last topic, heat insulation में, thermal insulation में. So we will cover that in the next class. कोई doubt है अभी तक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay then. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.